Hi everyone, this is Shreyansh, a first year undergrad student at Skiller School of Technology in BITS Pilani. जैसे कि NCERT and JEE आ रहा है, so me and my friends have decided to ask 5 questions from 5 assistants, including one of our senior. Let's get on to the video. When did you hear about NSET and Scalar? So I heard about NSET during in 2023 only. जब first year SST का खुला था. It's a great concept, great college. So let me try during my 12th. एनसेट के लिए ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्रेप तो करा नहीं था. बस जेई हुआ था, जेई बिट्स वगैरह, तो उसके लिए तो प्रेप चल ही रही थी और कोचिंग का मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व ही करा था. तो एनसेट तो मैंने बस ऐसे ही दे दिया था, कुछ प्रिपरेशन तो नहीं करी थी. उसके पहले लर्नेबिलिटी का, जैसे वर्धन ने बोला वैसे मैंने लर्नेबिलिटी के बूट कैंप्स अटेंड करे और शायद मैथ्स के थोड़े बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे. आप भी अगर हो तो अवेलेबल हो तो देख सकते हो, चेक कर सकते हो, वरना तो अगर बस उतना ही करा था और कुछ नहीं. I got to know about Scalar in January as I was preparing for JEE, but honestly I wasn't prepared actually. So unfortunately, It was at this moment that he knew. somehow I got to know about Scalar in YouTube ads, so I immediately applied for that. Actually, it was after my MHT CET exam. Like all the private colleges exams were there, so I was like looking for more further options. Like, and then you referred to me of Scalar and you were like कि let's research about, and हाँ उसके बारे में सोच के फिर उसका पता चला कि एंट्रेंस एग्जाम भी होता है NSET. In which attempt did you clear NCET? पहला अटेम्प्ट में हो गया था. नहीं, अच्छा मंथ पूछ रहा है, जून में हुआ था मेरा. When I applied for the NCET, in the first NCET, I actually failed. It was around in April, I think so, ending of April. So I felt really bad. Like, how come I failed? I got to know we can reapply for 3 times per year. So without thinking a second, I just applied again with paying some extra. I think so it was 500. And surprisingly, it was on June 5th, and I gave that attempt. And unfortunately, after giving that attempt, I got to know that instead of they have considered my profile-based selection. I described what and all projects I have built, and they reviewed my projects. And What is actually profile-based selection? the profile-based selection is something like, instead of seeing your marks, your grades, they will more focus on what real world projects you have built. They'll focus more on your skills, and that's actually true. Why? Because you cannot judge the person only by his marks, because he'll be having some extra skills. So even I think this kind of profile based selection should be there in every colleges. तो मैंने दिया था February 2024 था, मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, देन इंटरव्यू अगले मंथ हुआ. तो that was my intake. So it was your first intake, like first intake में clear हो गया. हाँ, फर्स्ट में क्लियर हुआ. तो एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा NSET का रिटर्न एग्जाम क्लियर भी नहीं हुआ था. फिर मैंने बोला ठीक है चलो एक बार और दे देते हैं और प्रिपेयर कर देते हैं. देन जुलाई अटेम्प्ट आई गेस, जुलाई में ये हुआ कि लाइक अरे कहना क्या चाहते हो? तो फिर वापस एक बार अटेम्प्ट दिया. देन सेकंड अटेम्प्ट में ही रिटर्न भी क्लियर हो गया और 2 इंटरव्यू राउंड से दोनों क्लियर हो गए. अपार्ट फ्रॉम JEE stuff, what all extra things you did for NSET? I prepared what and all the syllabus they had posted in their website. Apart from JEE, I used to read the board syllabus, and I was personally interested in building projects like software development, etc. मैथ्स के ऐसे जो उनका जो भी स्पेसिफिक टॉपिक्स था, तो उनका एनवी सर के शायद एक 1-1.5 घंटे के वीडियोस थे, वो रेफर कर लिया था. बस वो एनवी सर के जो 1-1.5 घंटे के होता है उसमें फॉर्मूला रिवीजन वगैरह हो जाता है और उतना काफ़ी है मैथ्स के लिए. बस PNC हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, और याद नहीं है, देख देखो यार, एक्स्ट्रा तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था. मैथ और लॉजिकल रीजनिंग के लिए तो लिटरली कुछ नहीं पढ़ा. एक नया कॉन्सेप्ट ये लोग पूछते हैं लर्नेबिलिटी नाम का. तो इसमें अबाउट कंप्यूटर साइंस रिलेटेड स्टफ पूछते हैं कि दे ट्राई टू टेस्ट यू वेदर यू आर फिट फॉर द प्रोग्राम और नॉट. तो बस वही एक्स्ट्रा बूट कैंप अटेंड किया था. अदर देन दैट नथिंग. टू बी ऑनेस्ट, JEE के अलावा एक्चुअली कुछ पढ़ा नहीं. लाइक थोड़े वो चैप्टर्स रिवाइज करने पड़े जो मैथ्स में इंपॉर्टेंट है, लाइक बाइनोमियल, PNC, वो सब चैप्टर्स बस रेफर करने पड़े. बिकॉज आई फील JEE का जितना है उतना भी इनफ है, उसके बिना भी हो जाता है. फिर बस वो रेफर करना है, बिकॉज इनके भी खुद के कोर्सेज है जो बेटर है, जो एक पूरी आइडिया दे देते कि कैसे क्या करना है. How was the interview round? इंटरव्यू राउंड मेरा 3 राउंड हुए थे. पहला 3 हुए थे मेरे.
तो मेरा पहला राउंड ठीक गया था। पहला राउंड में एक क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने हेल्प करी थी मेरे को मैथ्स वाले क्वेश्चन में, लेकिन वो फिर भी उतना ऐसे नहीं हुआ था मेरे से सॉल्व, तो फिर वो ऐसे ठीक गया था। फिर मेरा दूसरा राउंड हुआ था, दूसरा राउंड वेंट क्वाइट वेल। फिर पता नहीं क्यों ये लोग ने तीसरा भी ले लिया, तो तीसरा भी कर दिया मैंने। मोस्टली के आई गेस 2 राउंड हुए थे ना, तेरे में पहले उसमें 3 हुए थे। I had 2 rounds. First was the math and the second was personal interview. In the first interview, they asked me 2 questions of maths, and honestly saying, the person who was in the meeting, he was really kind of jolly. So even I enjoyed talking to him. Coming to the second personal interview round, they asked me about the projects, like how I built, and I just showed them in my screen. So yeah, surprisingly, after some weeks, I got to know that I was selected. What all projects did you make to impress the interviewer? Like what all, like on what basis did you got selected, like on your profile base? Like what all apps? Tell me more about your apps. Like what all projects did you build? I actually built an Android app, but I cannot take up the name. But I have built an Android app that's really good. It has good interface and it was a full stack. It has a backend fully set up and the front end it was working like CI/CD. Coming to next, I was actually building a official website for some studio. Yeah, I showed both of them and unfortunately everything went well. So that's fortunate. Yeah, fortunately everything went well. तो मैं क्वाइट नर्वस था, बट जो मेरा इंटरव्यूअर था ना वो बहुत सही बंदा था, लाइक ही वॉज वेरी चिल। तो उसने काम डाउन किया, अच्छे से बताया, क्वेश्चन में पूछा, और वही क्वेश्चन आते जो आप NSCT में आंसर किए थे। दे जस्ट ट्राई टू चेक वेदर यू हैव चीटेड और नॉट। तो आप आपका अप्रोच बता दीजिए एक बार, एंड देन एक राउंड में हो गया तो देन गुड, और एल्स सेकेंड राउंड में भी वही होता है। एंड देन दे आस्क अबाउट एम्बिशन एंड ऑल। तो बेसिकली आपको इंटरव्यू में बस यू हैव टू बी यू, डोंट हैव टू शुगर कोट एनीथिंग। चले एक काम कर, 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग की वजह से। To be honest, there weren't many resources to get to know कि कैसे interview rounds होते हैं, कैसे क्या questions पूछेंगे. So it was back of the mind. I was nervous कि कैसे होंगे, but all in all जब पहला interview round हो जाता है एंड फिर काफ़ी हद तक एक आइडिया मिल जाता है कि नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड में भी क्या पूछेंगे, तो वो काफ़ी अच्छा होता है. बट इट्स लाइक कि अगर कोई प्रिपरेटरी कोर्स होता जो हमें बता सके कि कैसा इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, सो आई फील बेटर होता. बट ठीक है, आई वॉज नर्वस अबाउट इट, बट ऑल इन ऑल इट वेंट स्मूथ. व्हाट वाज योर जेई जर्नी लाइक? कितना परसेंटाइल क्या था ऐसा? तो आई गॉट अराउंड 97 परसेंटाइल इन जेई. SST के बारे में तो पहले से ही पता था, तो इन द बैक ऑफ माई माइंड आई हैड दैट इसे एक बार ट्राई देना है. तो मैंने फिर बाकी कॉलेजेस भी ट्राई किया. मेरे को बिट्स भी मिल रहा था, बट देन अगेन मनपसंद ब्रांच नहीं मिल रहा था. तो फिर आई गेव NSCT, आई क्लियर द इंटरव्यू, आई गॉट कंप्यूटर साइंस. आई वांटेड कंप्यूटर साइंस, दैट्स द रीजन आई केम. The computer science branch of SST fascinated you to choose over JEE colleges? Yes, 100%. I wanted computer science, and the curriculum here is really good, and that is हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल. NSCT. That's the reason. जेई मतलब स्केलर आने के लिए क्यों सोचा कि जेई से भी तो मिल ही रहा था कुछ ना कुछ अच्छा, बिट से भी मिल रहा था, स्केलर ही क्यों? कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था और मेरे को स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस लेना था. कंप्यूटर साइंस स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहा और कहीं और कंप्यूटर साइंस अच्छी कॉलेज में नहीं मिल रहा था, तो स्केलर. और स्केलर इज गुड फॉर कंप्यूटर साइंस जितना मेरे को अभी तक लगता है. अभी तुम लोग आके देख लेना, फिर डिसाइड कर लेना. आके देख लेना, फिर डिसाइड कर लेना. नहीं पसंद है तो छोड़ के चले जाना, है ना? फीस तो तू दे देगा. तो अगर जेई का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है तो लेट्स ऑब्वियसली फोकस ऑन जेई. आफ्टर एग्जाम्स तो इनके एवरी मंथ NSCT होती है, तो यू कैन गिव NSCT एग्जाम. एंड रही बात प्रिपरेशन की, तो मैथ और लॉजिकल रीजनिंग की, अगर आप जेई अच्छे से पढ़ रहे हो तो आई डोंट थिंक यू हैव टू स्टडी एनीथिंग एल्स. और अगर आपका जेई का प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं चल रहा है, so maybe you can refer to their topics. गिने चुने टॉपिक्स होते हैं, लाइन बाय लाइन वैसे पढ़ सकते हो. एंड देन लर्नेबिलिटी के लिए अगेन यू कैन attend their boot camps which are really good. That's it. Any suggestions you wanna give for NCET, जेई? क्या ये भी बोलना चाहेगा कि इधर आओ या मत आओ? देखो, पहली बात, अगर कंप्यूटर साइंस के बारे में रियली पैशनेट हो तो आई गेस स्केलर इज अ प्लेस फॉर यू, तो बिल्कुल आना चाहिए. और क्या पूछा था? Any suggestions NCET जेई के लिए बोलना चाहेगा?
तो एनसेट के लिए बस यार जेई के लिए पढ़ रहे हो तो एनसेट भी निकल ही जाएगा, बस जेई के लिए अच्छे से पढ़ो और जेई की प्रेप बिल्कुल अच्छी चल रही है तो वैसे चलने दो और जेई में बस पीवाई की सॉल्व करो यार, मजे करो और कुछ। देखो इफ योर अभी तो मैं यही बोलूँगा कि लाइक जेई आ रहा है, जनवरी है तो जनवरी अटेम्प्ट पे फोकस करो, इवन ऑल्सो फोकस ऑन अप्रैल अटेम्प्ट टू एंड ऑल्सो फोकस अबाउट मैनी गवर्नमेंट कॉलेजेस एग्जाम्स लाइक WB जेई है, स्टेट कॉलेजेस एग्जाम्स, अपने कॉलेज के CETs एंड बिट्स भी है। उसके बाद लाइक आई वुड सजेस्ट टू गिव NSET जो अपने मई और जून के टाइम भी ओपन रहेगा, तभी भी आप दे सकते हैं। तो आई फील तब का टाइम बेटर रहेगा, बट स्टिल अभी के लिए फिलहाल फोकस ऑन जेई, नो मैटर हाउ योर जेई गोज, हाउ योर जेई प्रिपरेशन इज, बट वो काफी आइडिया मिलेगा आपको, काफी हेल्प मिलेगी कि एग्जाम टेम्परामेंट कैसे मेंटेन करते हैं NSET के लिए भी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्दर एग्जाम्स के लिए। तो हेलो एवरीवन, मैं श्रीमय हूँ। तो बेसिकली एनसेट के लिए मैंने कुछ खास प्रिपेयर नहीं किया था क्योंकि जेई के बाद ही मेरे को उसके बारे में पता चला था, जेई एडवांस के बाद, एंड मैंने जेई के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो मैंने जब सिलेबस देखा उसमें था मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और लर्नेबिलिटी, तो मैंने उसको मस्ती मस्ती में दे दिया था, लेकिन क्योंकि जेई के लिए मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छा था तो मेरे को एज सच काफ़ी टफ नहीं गया। तो फॉर ऑल दोस्त जो अभी एनसेट देने वाले हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि देखो मैथ्स में जो टॉपिक्स उन्होंने मेंशन करे हुए 5, उसमें से 2 टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड PNC, ये तो अच्छे से कर लो। जेई से स्टार्ट करो, जेई मेंस तक जाओ एंड उसके ऊपर के भी थोड़े क्वेश्चंस हो सकते हैं तो वो कर लो। लॉजिकल रीजनिंग के लिए इंडिया बिक्स नाम की वेबसाइट है, वो सजेस्ट करता हूँ मैं। एंड फॉर लर्नेबिलिटी एज सच तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम अगर सिर्फ स्केलर को ही टारगेट कर रहे हो तो यू कैन गो विद थोड़ा कोडिंग सीख लो, लाइक कोडिंग के बेसिक चीज़ें जैसे स्टैक्स हो गया, क्यूज हो गया, एरेज हो गया, ये सब तुम सीख सकते हो। कैट की एक बुक आती है अरुण शर्मा, उसकी बुक से। और इंटरव्यू राउंड वो तो मैं नहीं प्रिपेयर किया था मैंने।